السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة، لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یا مصطفیٰ محمد یا مرتضیٰ علی، حاجت روا محمد مشکل کشا علی۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ اسلام پر حسین نے احسان کر دیا، گھر بر خدا کے نام پہ قربان کر دیا، اپنے لہو سے سینچ کر پیارے حسین نے، اے خاک کربلا تجھے ذیشان کر دیا۔ محترم حاضرین کرام، آپ سب کا شکریہ کہ آپ سب آج اس امام حسین کی مجلس میں، اس ڈیجیٹل مجلس میں، اس نیٹ ورکنگ کی مجلس میں آپ سب شریک ہیں اور اپنا وقت حضرت امام حسین کی یاد میں اور محبت میں صرف کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے، جو لوگ یہاں پر شریک ہوئے، آگے شریک ہوں گے، سب کو میں اپنی طرف سے السلام علیکم اور وعلیکم السلام بھی کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اچھا رکھے اور اس عاشورے کی رات کی برکت سے آپ کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے اور اپنی تمام آپ کو جو پریشانیاں ہیں اور جو حالات ہیں، اللہ ان سب سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے راہ خدا میں اپنی گردنیں دے دی ہیں، اپنی جانیں دے دی ہیں، جو قتل کیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔
اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، اے ایمان والوں ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی مال کے نقصان سے، کبھی جان کے نقصان سے، کبھی پھلوں کے نقصان سے، اور بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور وہ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں، زبان سے ہی نہیں، اپنے کردار سے، اپنے حال سے بھی اور قال سے بھی ان کا یہ نصب العین ہوتا ہے کہ یہ چیز اللہ ہی کی ہے، ہر چیز اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والی ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی ایکسیڈنٹل کیس نہیں ہے، یہ بہت ہی اہم شہادت ہے، اور اس کے لیے اللہ کے رسول کے نواسوں کو چنا گیا۔ یہ منتخب اور سلیکٹڈ شہادت ہے، ایک عظیم مقصد کے لیے عظیم تربیت سے نکھر کر کے اور عظیم صبر و رضا کا پیکر بن کر کے کربلا کے میدان میں اس عظیم نے اسلام کی عظمت پہ چار چاند لگا دیے۔ اب تک باہر کے دشمنوں سے مقابلہ تھا، ابو جہل جیسے لوگوں سے، ابو لہب جیسے لوگوں سے، عتبہ اور شیبہ سے، تو تمام صحابہ کرام نے اپنی قربانیوں سے اسلام کو طاقت بخشی۔ اب جب کچھ گھن لگ گئے اور اندر ہی اندر انہوں نے اسلام کو کھوکھلا کرنا چاہا، دین کے نام پہ بے دینی کو فروغ دینا چاہا اور حدود اللہ کو پامال کرنے کی کوشش کی اور شریعت کے چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کی، تو جب دشمن گھر کا آیا تو بچانے والا بھی گھر کا چاہیے۔ دین رسول کا تھا، شریعت رسول کی تھی، قرآن رسول پر نازل ہوا تھا، تو اس کی حرمت اور اس کے ناموس کی حفاظت کے لیے ضروری تھا کہ آل رسول سامنے آتے۔ اور حضرت امام حسین کی جو شہادت ہے وہ بہت سی بشارتوں سے چمکتی اور دمکتی نظر آتی ہے۔ یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ فوراً نکلے اور حالات ایسے آ گئے اور ظلم ہو گیا، نہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا کی، مولا علی کی، اور پھر ان کے ذریعے حضرت حسنین کریمین کی، خود رسول کے ذریعے حسنین کریمین کی جو ٹریننگ کی گئی ہے، وہ ٹریننگ جو ہے وہ کربلا کے میدان میں اس ٹریننگ کا رزلٹ آتا ہے۔ بھوک، پیاس، صبر اور رضا کے خوگر تو یہ اہل بیت پہلے ہی سے تھے۔ حسین کو دین بچانا تھا تو حسین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، کبھی اپنی زلف معمبر کو پکڑا کر کے، کبھی اپنے پشت پہ سوار کر کے، کبھی اپنی گود میں لے کے، کبھی اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھا کر کے۔ حسین جگر گوشے رسول بن کر کے پروان چڑھ رہے ہیں۔ یہ حسین کی ساری خوبیاں اور حسین کے سارے کمالات اور حسین کی ساری پاکیزگی یہ صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو اپنے آغوش رحمت میں پروان چڑھایا اور ایسی محبت کے نمونے پیش کیے کہ جن نمونوں کو آپ دیکھیں تو احادیث کریمہ
کے الفاظ ان نمونوں کی روشنی بکھیر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حسین کربلا تک جو کچھ بن کر کے گئے تھے، یہ کرم تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تربیت تھی رسول کی، یہ لعاب دہن کا فیض تھا کہ وہ رسول جو اپنی زبان کو حسین کی زبان میں ملا دیتے تھے اور حسین کی زبان کو چوسا کرتے تھے، یہ برکت تھی رسول پاک کے دہن مبارک کی کہ پھر پیاس نے حسین کی زبان کو کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم تھا۔ تو حسین اتنی عظمت والے اور کرامت والے اور فضیلت والے بنے کب؟ جب میرے رسول نے ان کو پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ پروان چڑھایا۔ رسول پاک سید الانبیاء جس کا نانا ہو، سیدۃ النساء العالمین جس کی ماں ہو، سید الاولیاء امام الاولیاء جس کا والد ہو، اس حسین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ فاطمہ کا دودھ، علی کا خون اور نبی کا نور، اس کی آمیزش نے حسین کو یکتائے روزگار بنا دیا۔ حسین کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، مجھ سے ہے، جو صداقت ہے وہ مجھ سے ہے، جو عدالت ہے وہ مجھ سے ہے، جو شہادت کا جذبہ ہے وہ مجھ سے ہے، جو فتح و نصرت ہے وہ مجھ سے ہے، جو حسین کی جیت ہے وہ مجھ سے ہے۔ حسین کے اندر جتنے بھی کمالات اور جمالات ہیں وہ سب رسول سے ہے، رسول کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے سرکار فرماتے ہیں حسین منی، یہ حسین میرا ہے، یہ حسین مجھ سے ہے، اس حسین کو جو بھی ملا ہے وہ مجھ سے ملا ہے۔ دینے والا رسول، لینے والے حسین، حسین مجھ سے ہیں۔ اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن۔ سبحان اللہ، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ رسول سے حسین ہیں، یہ کیسا فرمان ہے کہ رسول فرماتے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کربلا تک حسین جتنا بھی سنورے ہیں اور سجے ہیں، کربلا کے میدان تک وہ سب حسین مجھ سے ہیں، حسین مجھ سے ہیں۔ اور کربلا کے بعد جو ناموس رسالت کا پرچم لہرا رہا ہے، جو دین کی بقا کا ماحول بنا ہوا ہے، اور جو شریعت اسلام کے جلوے ہر طرف بکھرے نظر آ رہے ہیں، جو اسلام کے شعار اور اسلام کے کردار کے نمونے جا بجا پہنچے ہوئے ہیں، صوفیہ کی شکل میں، بزرگوں کی شکل میں، اولیاء کی شکل میں، سلسلوں کی شکل میں، محبوبوں کی شکل میں، اسلام کی خدمت کرنے والے، دین کا کلمہ پڑھنے والے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ترویج و اشاعت کرنے والے، یہ جو کچھ بھی بعد میں نام زندہ ہے، میرا جو مشن زندہ ہے، جو میری تحریک زندہ ہے، جو میرا پیغام زندہ ہے، یہ میرے حسین کی وجہ سے ہے۔ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین ریحانتا من الدنیا، حسین اور حسن یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ سبحان اللہ، میری دنیا کے یہ دو پھول ہیں، میرے لیے یہ دنیا کے پھول ہیں۔ سبحان اللہ،
सरकार के जो फूल हैं वो किसी बाग के फूल नहीं, रसूल के आंगन के फातिमा के दो नौनिहाल। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हसन हुसैन दुनिया में मेरे दो फूल हैं, दुनिया के मेरे दो फूल हैं। सरकार फरमाते हैं जिसको ये बात भली लगे कि वो नौजवानाने जन्नत के सरदार को देखे तो उसे चाहिए कि वो हुसैन को देखे, यानी हसनैन को भी देखे। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। सरकार फरमाते हैं जहाँ तक हसन का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसन को मेरी हैबत और मेरी सरदारी मिली और हुसैन को मेरी सखावत और बहादुरी मिली। जहाँ तक हसन का ताल्लुक़ है तो उनके हिस्से में मेरी हैबत और सियादत आई और हुसैन के लिए मेरी जुरात और सखावत है। इसे तबरानी और अबू नईम इब्न असाकिर ने रवायत किया है। ये हैं हज़रत हुसैन। आज मैं इनका कुछ मकाम और फिर इनका वो किरदार जो करबला के मैदान में मुख्तसरन अर्ज़ करूँगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहब्बु अहले बैती इलल हसन वल हुसैन, मेरे घर वालों में से मेरे महबूब तरीन हसन और हुसैन हैं। इब्न माजा ने याला इब्न मर्रा से रवायत की है कि वो एक दिन जनाब नबी करीम के हमरा निकले, एक खाने में दावत थी। क्या देखते हैं कि हुसैन एक गली में खेल रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब करीम बाकी लोगों से आगे बढ़े और अपने हाथ फैला दिए और उनके साथ हंसने लगे, उन्हें चूमा और फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह उसको महबूब रखता है जो हुसैन से मोहब्बत करे। हुसैन की औलाद बहुत ज़्यादा और बाकी रहने वाली होगी। हुसैन उम्मतों में से गोया एक उम्मत हैं, अंजुमन में से एक अंजुमन है हुसैन। तो ये है हज़रत हुसैन का मर्तबा जो हदीसों में आया है। अब आपको देखें कि सहाबा किराम का हुसैन से क्या ताल्लुक़ था, उसकी एक मिसाल आपको देते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी आपको अपनी औलादों पर तरजीह देते थे। हत्ता कि बख्शिश और अतियात में हज़रत हुसैन को वो फ़ौक़ियत देते नज़र आते थे। चुनांचे आपने इन दोनों हजरात के लिए, हसन हुसैन के लिए अहले बद्र के बराबर वजीफ़ा मुकर्रर कर रखा था। और जिस दिन आपने उनमें से हर एक को 5-5 हज़ार दीनार दिए और अपने बेटे को 1000, तो बेटे ने खफा होते हुए बेटे ने अपने वालिद से शिकायतन अर्ज़ किया आप इस्लाम में मेरी सबक़त और हिजरत से बखूबी वाकिफ़ हैं, क्या इन दोनों को आप 5-5 हज़ार और मुझे 1000 रुपये, हालांकि वो अभी तक बच्चे हैं और मदीने की गलियों में अभी वो खेल रहे हैं। तो उस पर उनके वालिद गिरामी हज़रत उमर ने उनसे फ़रमाया ऐ अब्दुल्ला हल लका जद्दुन का जद्दहिमा औ जद्दतुन का जद्दतिहिमा औ का उम्मुन का उम्महिमा औ अबुन का अबीहिमा। ऐ अब्दुल्ला तेरी ख़राबी हो, क्या तुम्हारा नाना इन दोनों के नाना की तरह है, या तुम्हारी नानी इन दोनों की नानी की तरह है, या तुम्हारी माँ इन दोनों की माँ की तरह है, या बाप इन दोनों के बाप की तरह है। यानी अहले बैत के हिसाब से जो मौला अली की खुसूसियत थी उस एतबार से कहा कि जब इनके वालिद अहले बैत के एक चिराग हैं, इनकी माँ की तरह तुम्हारी माँ नहीं है, इनके बाप इनके नाना की तुम्हारे नाना नहीं है, इनकी नानी की तरह तुम्हारी नानी, तुम इनकी बराबरी करते हो। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला
کہ اپنے لڑکے کو 1000 دینار وظیفہ دیتے ہیں اور حضرت امام حسن حسین کو 5000 دیتے ہیں. اور جب لڑکے نے شکایت کی تو حضرت عمر نے فوراً جواب دیا کہ تم ان کی طرح کہاں ہو. یہ ہیں دوستو حسن حسین. حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم جیسی جلیل القدر ہستیوں کی یہ نوازش ہے حضرت امام حسن اور حسین کے ساتھ. یہ ہے حضرت امام حسین کا مرتبہ اور ان کا مقام. آپ دیکھتے چلے جائیں. اپنے صحابہ، ہم عصر صحابہ، جو صحابہ کا دور تھا اور تابعین کی نظروں میں دونوں اماموں کی بہت ہی قدر و منزلت، بہت ہی ان کا وقار تھا. لوگ بڑی عزت کرتے تھے. صحابہ کتنی عظمت والے تھے، لیکن آل نبی اہل بیت کی وجہ سے حضرت حسن حسین کا بڑا وقار تھا، بڑی عزت فرماتے تھے. آپ دیکھیں کہ ان کے چچا زاد بھائی، حضرت حسین کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس اگرچہ وہ عمر میں ان دونوں سے بڑے تھے اور بہت بڑا علمی مقام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا. اللہم فقہ فی الدین، سرکار نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ان کو دین میں فقاہت عطا فرما. عظیم فقیہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ دین کے بہت بڑے فقہاء کرام ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس عمر میں بھی بڑے ہیں اور زبردست علم والے ہیں. لیکن جب ان دونوں شہزادگان میں کوئی سوار ہوتا گھوڑے پر تو باوجود کہ بڑے ہونے کے، علم میں عظیم ہونے کے، وہ اتنے معزز و مکرم تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ان کی رکاب تھام لیتے تھے اور ان کے کپڑے درست کرتے تھے. جب وہ گھوڑے پہ چڑھتے تھے تو رکاب تھام لیتے تھے اور ان کے کپڑے درست کرتے تھے. لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو سائل سے یوں فرمایا، تدری من ہذان؟ ہذا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لیس مما انعم اللہ علی ان امسک لہم الرکاب واسوی علیہم الشباب. سیاب، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ دونوں کون ہیں؟ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں. تم نہیں جانتے یہ ہیں کون؟ تمہیں یہ تعجب ہوتا ہے کہ میں ان کی رکاب کیوں تھامتا ہوں؟ عمر کے ہونے کے باوجود بھی، علم میں اتنے عظیم ہونے کے باوجود بھی ان کی رکاب تھامتے ہو. تو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ ہیں کون؟ ان کا مقام تمہیں نہیں معلوم ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا ان کا رکاب تھامنا اور ان کے کپڑے درست کرنا مجھ پر اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں ہے؟ اللہ اکبر. کیا ان کا رکاب تھامنا اور ان کے کپڑے کو درست کرنا مجھ پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے؟ سبحان اللہ. تو یہ ہے اہل بیت کی خدمت اور اہل بیت کا مقام، آل رسول کا مقام. پنجتن پاک میں سے حضرت حسنین کریمین کا مقام کہ اتنی بڑی علمی ہستی اور فضل و کرم کے مینار ہوتے ہوئے بھی وہ حضرت حسنین کریمین کی عزت کر رہے ہیں، رکاب تھام رہے ہیں، ان کے کپڑے کو درست کر رہے ہیں اور اس کو اپنے اوپر انعام الہی تصور کر رہے ہیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں حضرت حسین سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی اس محبت عطا فرمائے. ایک اور واقعہ میں بتاتا ہوں. میں آپ کو آج بڑے مستند واقعات حضرت امام حسین کے تعلق سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت امام حسین ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے. آپ کے قدم مبارک غبار آلود ہو گئے، آپ کے پیروں میں مٹی لگ گئی. آپ جنازے میں گئے تو آپ کے پیر میں مٹی لگ گئی. ابو ہریرہ اٹھے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ، اللہ اکبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کے بہت بڑے حافظ، لاکھوں حدیث کے حافظ حضرت ابو ہریرہ اٹھے اور ان کے قدموں سے مٹی جھاڑنے لگے. اللہ اکبر. حضرت حسین کے قدموں سے
मिट्टी झाड़ने लगे। सीनियर हैं, सहाबी रसूल हैं, जलीलुल कद्र सहाबी रसूल हैं, ज़बरदस्त आलिम हैं, ज़बरदस्त मुहद्दिस हैं, लाखों हदीस अपने सीने में लिए हुए हैं रसूलुल्लाह की। मगर जब वो मिट्टी हज़रत हुसैन के कदमों में लग गई तो उसे झाड़ने लगे। तो हज़रत हुसैन ने उनसे फरमाया, ये आप क्या कर रहे हैं हज़रत अबू हुरैरा, आप ये क्या कर रहे हैं? उस पर हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, मुझे छोड़िए, बखुदा अगर लोग आपके बारे में वो कुछ जानते जो मैं जानता हूँ तो वो आपको अपनी गर्दनों पर उठा लेते, यानी अपनी गर्दन पर ही लिए रहते हैं आपको। अब आप देखिए, लोग आज अपने इल्म की और अपने मकाम की और अपने मर्तबे की दुहाई दे करके अहले बैत की शान कम करने की कोशिश करते हैं या बयान करने को अपने लिए कसरे शान समझते हैं। देखिए कि जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत का ये आलम है, रसूल के सहाबी का ये आलम है, तो आजकल के ये चंद दिन के इधर उधर के पढ़े लिखे अगर हुसैन आज़म से और हुसैन के घराने से किसी को दूर करने की कोशिश करते हैं या उनके मकाम को घटाने की कोशिश करते हैं या उनके मुकाबिल बातें करते हैं, तो इनकी क्या हैसियत है और इनका क्या आलम है। मगर वो लोग खुश नसीब हैं जिन्होंने हज़रत हुसैन से मोहब्बत कर रखी है। हत्ता कि बहुत सारे सहाबा ऐसे भी थे, बहुत सारे सहाबा का ये मामूल था कि जब वफ़ात का वक्त करीब आता तो वो अपना कुछ माल हसनैन करीमैन की खिदमत में पेश करने की वसीयत कर जाते। अल्लाह अकबर। बाद सहाबा, कितने सहाबा ऐसे थे कि जब उनका इंतकाल करीब होता, इंतकाल होने वाला होता, तो जहाँ वो वसीयत करते उसमें कुछ माल वो ये भी वसीयत कर जाते कि मेरे ये माल का हिस्सा हज़रत हसनैन करीमैन को बतौर नज़र और बतौर हदिया दे दिया जाए। वो जानते थे कि इससे रसूल खुश होंगे और रसूल खुश होंगे तो मेरा मकाम और बुलंद हो जाएगा। यानी वो रसूल के इश्क को आले रसूल के ज़रिए जो है वो उसकी तकमील किया करते थे। और वो इश्क रसूल हो ही नहीं सकता जिसमें पंजतन पाक और अहले बैत, फातिमा ज़हरा, अली मुर्तज़ा, हसनैन करीमैन की मोहब्बत शामिल ना हो। इनकी मोहब्बत के बगैर कोई भी आशिक रसूल होने का दावा नहीं कर सकता। इनसे दूर रह करके न किसी का इश्क माना जाएगा, न किसी का इश्क तस्लीम किया जाएगा। तो वो सहाबा इकराम देखिए अपने माल में भी हसनैन करीमैन के लिए वसीयत कर रहे हैं। और ये बात मशहूर है कि हज़रत मिक़दाद इब्न अम्र ने अपनी वफ़ात से पहले, हज़रत मिक़दाद बिन अम्र ने अपनी वफ़ात से पहले अपने तरके में से 36,000 दीनार इन दोनों हज़रात के लिए वसीयत फरमाया था। तो दोस्तों और अज़ीज़ों, ये है हज़रत हसनैन करीमैन और हज़रत इमाम हुसैन का मकाम। और आप ऐसे सखी और ऐसे करीम अहले बैत तहार के घर से कभी कोई खाली नहीं गया, इमाम हुसैन के घर से कभी कोई खाली नहीं गया, मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर वाले से कभी खाली नहीं गया, अहले बैत के घर से कभी कोई भूखा और प्यासा नहीं गया। जिनके घर से कोई भूखा और प्यासा नहीं गया, जालिमों ने उन्हीं को भूखा और प्यासा कत्ल किया। एक दिन एक बद्दू आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ, गांव और अरियाफ का रहने वाला, और उसने आपके दरवाजे पर दस्तक दी। और दस्तक देते हुए एक अरबी का शेर जिसका मफ़हूम मैं पढ़ दे रहा हूँ, इसका तर्जुमा, जिसने तेरे साथ उम्मीद बांधी वो कभी भी आज के दिन तक नाकाम नहीं रहा, और ऐसे ही वो भी जिसने तेरे दरवाजे के पीछे लटकी हुई जंजीर हिलाई। उसने ये शेर पढ़ा कि कोई इस दौखट से कभी वापस नहीं गया है, जिसने इस दरवाजे की जंजीर हिलाई है कभी वो नामुराद नहीं लौटा है। अभी उसने आवाज़ लगाई थी कि हज़रत हुसैन उस वक्त नमाज़ पढ़ रहे थे। अल्लाह अकबर। हज़रत हुसैन उस वक्त नमाज़ पढ़ रहे थे और वो यही आवाज़ दे रहा था, कभी इस चौखट से कोई वापस नहीं गया, कभी कोई यहाँ पर जो जंजीर यहाँ पर तेरे दरवाज़े पे लगी हुई है, इसको जब कभी किसी ने हिलाया है तो फ़ौरन अपने दामन मुराद को उसने ज़रूर भर लिया है। ये भी आवाज़ लगा रहा कि हज़रत हुसैन नमाज़ पढ़ रहे हैं।
آپ نماز کو مختصر کر کے جلدی جلدی آپ نے نماز پڑھا. سبحان اللہ. یہاں لوگ تو کہیں گے بھیا دیکھو نماز پڑھ رہے ہیں, اپنی نماز کا ہی بخان شروع ہوگا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب نواسا, اس نے اپنی نماز کو جلدی سے مختصر کر کے وہ باہر تشریف لائے اور اس اعرابی کے چہرے پر فقر و فاقہ, تنگی اور غریبی کے آثار دیکھے. جب آپ نے اس کے چہرے پر غریبی اور تنگ دستی کے آثار دیکھے, آپ نے اپنے غلام کو آواز دی اور اسے پوچھا کہ ہمارے خرچے کی رقم میں سے تمہارے پاس کچھ باقی ہے؟ اس نے عرض کی حضرت 200 درہم ہیں جن کے بارے میں آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں انہیں آپ کے اہل بیت میں تقسیم کر دوں. میرے پاس صرف 200 درہم ہیں جو آپ نے دیے ہیں, اور آپ نے اس کے لیے یہ کہا تھا کہ اس کو میں آپ کے گھر والوں میں بانٹ دوں. یہی میرے پاس 200 درہم ہے جس کو مجھے آپ کے گھر میں بانٹنا ہے. حضرت حسین نے فرمایا وہ لے آئیے. اب وہ آ گیا ہے جو ان کا میرے اہل بیت کی بنسبت زیادہ حقدار ہے. اللہ اکبر. اب اسے میرے گھر والوں میں مت بانٹو, اب یہ وہ فقیر آ گیا ہے جو میرے گھر والوں سے زیادہ حقدار ہے, اور اسے آپ نے صرف 200 درہم سب گھر میں تھے, گھر کے خرچے کے لیے تھے, اسے آپ نے اس فقیر کو دے دیا. آپ نے وہ درہم حوالے کر دیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے معذرت بھی چاہی کہ مجھے معاف کرنا, یہ میرے پاس کم ہی ہیں. اب جتنے تھے وہ تو دے دیے, دینے کے بعد بھی معذرت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے اخلاق حسین, یہ ہے کردار حسین. اس وقت بدو نے, اس اعرابی نے ایک شعر پڑھا, مطہرون نقیات جیوبہم تجری الصلاۃ علیہم اینما ذکروا وانتم العالون عندکم علم الکتاب وما جاءت بہ السور. وہ پاک ہیں, ان کے گریبان صاف ستھرے ہیں, جہاں بھی ان کا ذکر کیا جائے ان پر درود پڑھا جاتا ہے, اور یہ تم ہی ہو جن کے بارے میں وانتم العالون, تمہارے پاس کتاب اور ان کی صورتوں کا علم ہے. یہ اس نے شعر پڑھا اور چل دیا. آپ نے حضرت اسامہ بن زید کا قرض جس کی مالیت تقریباً 60,000 سے لگ بھگ تھی, 60,000 دینار کے لگ بھگ تھی. حضرت اسامہ بن زید کا قرض جس کی مالیت 60,000 کے لگ بھگ تھی, اس وقت ادا کر دیا جب آپ نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ بہت غمزدہ ہیں. 60,000 کے قرضدار ہیں اور غمزدہ ہیں, اور انہیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں اس کے ادا کرنے سے پہلے ہی ان کی وفات نہ ہو جائے. وہ غمزدہ ہیں کہ کہیں میری وفات نہ ہو جائے اور قرض باقی رہے. تو حضرت حسین نے ان کا غم کو دیکھ کر کے ان کے 60,000 دینار کا قرض ان کی طرف سے ادا کر دیا. یہ ہے حضرت حسین کی سخاوت. اللہ اللہ, یہ ہیں محمد کے گھرانے والے. خود نہیں کھاتے, اوروں کو کھلا دیتے ہیں. کیسے فیاض ہیں, کیسے سخی ہیں محمد کے گھرانے والے. ایک مرتبہ ان کی ایک لونڈی نے ان کا ادب بجا لاتے ہوئے انہیں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا. آپ نے اسے اس کا بدلہ یہ دیا کہ اس نے فرمایا جاؤ, اللہ کی خوشنودی کی خاطر تم آزاد ہو. ایک گلدستہ دیا اور آپ نے اس کی اللہ کی خوشنودی کے لیے اسے فوراً آزاد کر دیا. اس وقت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس موجود تھے اور کہنے لگے یہ عجیب بات ہے کہ ایک لونڈی آپ کے پاس پھولوں کا ایک گلدستہ لائی اور آپ اسے آزاد کر دیا. فرمایا ایسے ہی ہمارے رب تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس کا جواب اس سے بہتر انداز میں دو, ورنہ اتنا سلام تو ضرور لوٹاؤ جتنا اس نے کیا ہے. میرے نزدیک لونڈی کے سلام کا بہتر جواب اس کا آزاد کر دینا تھا. سبحان اللہ. آپ کی تہذیب اور شائستگی اور عمدہ اخلاق کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کے اور آپ کے بھائی حضرت علی سے, حضرت فاطمہ کے علاوہ جو حضرت علی نے نکاح فرمایا تو ان سے جو صاحبزادے ہوئے تھے حضرت محمد بن حنفیہ, بڑا خوبصورت واقعہ ہے. اس میں بڑا دلنشیں
انداز ہے، آپ دیکھیے گا کس طریقے سے حضرت امام حسین کے اندر تواضع ہے، انکساری ہے، اور کس قدر شفقت ہے۔ آپ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ کے درمیان کچھ رنجش پیدا ہو گئی، تو حضرت محمد بن حنفیہ نے ان کو یوں خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد بن علی بن ابی طالب الی الحسین بن علی بن ابی طالب، اما بعد فإن لك شرفا لا أبلغه وفضلا لا أدركه وأبونا علي رضي الله تعالى عنه لا أفضلك فيه ولا تفضلني وأمك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من الأرض نساء مثل أمي ما وافين بأمك فإذا قرأت وقاني هذا، میں یہ عبارت ذرا لمبی ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ محمد بن علی بن ابی طالب کی طرف سے حسین بن علی بن ابی طالب کے نام، اما بعد، بے شک آپ کو وہ شرف حاصل ہے جس تک میری رسائی نہیں، اور آپ کو وہ فضیلت حاصل ہے جسے میں نہیں پا سکتا۔ ہمارے والد گرامی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، اس رشتے میں میں آپ کو اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دوں گا، اور نہ ہی آپ مجھے دے سکتے ہیں، مگر جہاں تک آپ کی والدہ ماجدہ کا تعلق ہے وہ فاطمہ بنت رسول اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر میری ماں کی طرح روئے زمین کے برابر بھی عورتیں جمع ہو جائیں تو وہ سب کے سب آپ کی والدہ ماجدہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی۔ جو ہی آپ میرا یہ رقعہ پڑھیں، اپنی چادر اوڑھ لیجئے اور جوتیاں پہن لیجئے، یعنی تیار ہو جائیے اور میرے پاس آ جائیے اور مجھے راضی کر لیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہل کرنے کی اس فضیلت میں آپ سے سبقت نہ لے جاؤں، جبکہ آپ میری نسبت آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ والسلام۔ حضرت حسین سمجھ گئے کہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے ان کی نسبت ان کا کم درجہ بھائی انہیں حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک یاد دلا رہا ہے کہ اگر کسی مرد مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن رات سے زیادہ اپنے بھائی سے اس قدر جدائی اختیار کرے کہ اگر وہ ایک دوسرے سے ملیں تو وہ اس سے منہ پھیر لیں، اور اس سے مگر ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کے ساتھ ابتدا کرے۔ یہ سوچ کر حضرت حسین نے جلدی سے پوشاک پہن لی، تیار ہو گئے اور اپنے چھوٹے بھائی کی طرف چل دیے اور انہیں راضی کر لیا۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے حضرت حسین کا کہ حضرت محمد بن حنفیہ ان کو خط لکھ رہے ہیں کہ میں باپ کے طور پر تو ہم برابر ہیں، لیکن آپ کی ماں کی طرح اگر میری ماں کی طرح جو ہے پوری روئے زمین بھر دی جائے تب بھی اس مرتبے سے میں آپ کے برابری نہیں کر سکتا، میں آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب جیسے ہی آپ میرا یہ خط پائیں تو فوراً اپنے جوتے پہن لیں، کپڑے پہن لیں اور فوراً چلے آئیں اور مجھ کو راضی کر لیں، کیونکہ اگر میں راضی کرنے آؤں گا تو میں ابتدا کروں گا، تو ابتدا کرنے والوں کو زیادہ ثواب ملے گا، اس کی فضیلت زیادہ ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ جو ہیں فضیلت میں مجھ سے کم رہیں۔ یہ حضرت حسین کا لحاظ ہے، یہ حضرت حسین کا مقام ہے کہ لوگ اپنی فضیلت کو بھی روک رہے ہیں تاکہ آپ کو فضیلت زیادہ مل جائے۔ یہ ہے حضرت امام حسین کا مقام اور حضرت امام حسین کا مرتبہ۔ ایسے حضرت امام حسین بہت سی روایتیں آج میں نے وہ آپ کو پیش کی ہیں جو کم عام طور پر ہم پیش کرتے ہیں، اور اس لیے میں نے کچھ الگ باتیں آپ کو جو نادر کم جو ہے واعظین کے زبان پر رہی ہے، ہم لوگوں کی بھی زبان پر، میں نے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ حضرت حسین کی شہادت کا قصہ بڑا المناک اور دردناک ہے۔ ہر اس مسلمان کے دل میں اس کا گہرا زخم ہے، اور جو یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون مسلم کی کتنی قدر و منزلت ہے اور اہل بیت کا کس قدر حق ہے کہ ان کی کتنی فضیلت و شرافت ہے، اور حضرت حسین کا کیا مقام ہے۔ یہ دونوں جناب رسول اللہ حسنین کریمین، یہ دونوں جناب رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ آپ انہیں اپنے گھٹنوں پر مبارک پر بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، جو ان سے محبت کرے انہیں بھی محبوب رکھ۔ ان دونوں کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس دردناک واقعے کے
दूर व नज़दीक ज़ाहिरी और बातनी असबाब मुताला करने वाला ये समझता है कि ये जो साजिश की गई है, कुछ खुफिया हाथ, कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिससे इस कौम में फितना डाला गया है। और यजीद चूँकि औबाश था, अय्याश था, ज़िनाकार था, बेनमाजी था, बंदरों से खेलने वाला था, हुदूदुल्लाह को तोड़ने वाला था, शरीयत का तमस्खुर उड़ाने वाला था। लिहाजा ये बात बैद है कि हज़रत हुसैन जैसी शख्सियत जो है वो यजीद के हाथ पर बैत कर ले। यजीद ने बहुत ज़ोर डाला, सरकार इमाम हुसैन मदीने से मक्का चले आए, फिर वहाँ पर कूफियों के खतूत आए और कूफियों के खतूत को देख करके इमाम हुसैन ने कूफा जाने की तैयारी कर ली। उससे पहले मुस्लिम बिन अकील को भेजा उनके दोनों शहजादगान के साथ। कूफा वाले बेवफा निकले, मुस्लिम बिन अकील और उनके दोनों शहजादे वहाँ पर शहीद हो जाते हैं उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के जुल्म सितम से। लेकिन इससे पहले कि वो शहीद हों, वहाँ पर चूँकि इस्तकबाल बड़ा ज़बरदस्त होता है, इमाम हुसैन के नाम की बैत 12,000 की तादाद में लोग कर लेते हैं। और हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने उस वक्त अच्छे हालात को देखते हुए इमाम हुसैन को ख़त लिख दिया था। इमाम हुसैन जो है के पास वो ख़त पहुँचा, हज़रत हुसैन जो है वो निकल गए, इधर हज़रत मुस्लिम बिन अकील शहीद हुए। हज़रत हुसैन निकलने के बाद जब मकाम सालबा पर पहुँचे तो वहाँ उन्हें हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर हुई। और उसके बाद फिर वो काफ़िला आगे बढ़ता रहा, लोगों ने वापस आने से इनकार कर दिया। और फिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने 1000 का लश्कर लेकर के हज़रत हुर को जो है भेजा कि जा कर के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस निवासे को पाबंद किया जाए और उन्हें मेरे तक लाया जाए। हज़रत हुसैन जो है एक मकाम पर ठहरे हुए थे कि हुर जो है वो वहाँ पर आते हैं और इमाम हुसैन को अपना इब्न ज़ियाद का पैगाम देते हैं कि मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपको पाबंद करूं, आपको कहीं जाने न दूं। हज़रत हुर से हज़रत इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया कि ऐ हुर, हम देखो अपने से नहीं आए हैं, कूफा वालों ने हमें मुताद्दिद खतूत लिखे हैं, 150 के करीब ख़त लिखे हैं, मुताद्दिद खतूत लिखे हैं। रोसा और जोमा ने हमको यहाँ बुलाया है, इस वजह से हम यहाँ पर आए हैं। अगर ऐसी बात है तो हम कहीं चले जाते हैं, लेकिन तुम हमें पाबंद सलासिल करके यजीद के पास न ले जाओ, तुम हमें यहाँ पर मुक़य्यद मत करो, मुझे जाने दो। लेकिन हुर जो हैं वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं और इमाम हुसैन के साथ रहते रहते उनका दिल नरम होता है। फिर वो कहते हैं कि आप रात को खेमा उठाइए और चले जाइए। हज़रत हुसैन जो है हुर से बात करके रात को निकल जाते हैं और अपने काफ़िले को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। और हुर धीरे धीरे अपनी सवारी और अपने काफ़िले को ले चलता है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को पता चलता है, अमर बिन साद जो है या उमर बिन साद जो है वो वैलम के जिहाद के लिए हुकूमत रे की लालच में वहाँ जा रहा था। लेकिन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने उसको कहा कि नहीं, तुम सबसे पहले हज़रत हुसैन के साथ जाके मुकाबला करोगे, उसके बाद भी तुम्हें रे की हुकूमत मिलेगी, तब तुम जिहाद पे जाओगे, पहले हुसैन से टकराओ। वो मना करते हैं, लेकिन कहा सोच लो, अगर तुम रे की हुकूमत चाहते हो तो तुम्हें हुसैन से टकराना होगा, और अगर तुम्हें रे की हुकूमत नहीं चाहिए तो तुम्हारी मर्ज़ी। उमर बिन साद जो है वो रात भर सोचते हैं और सोचते सोचते उनकी दुनियादारी और दुनिया की हिर्स उन पे गालिब आ जाती है और वो जो है ये फ़ैसला लेते हैं कि हम जो है हज़रत हुसैन से मुकाबले के लिए जाएंगे। हज़रत हुसैन जो है वो आगे बढ़ते हुए एक मकाम पर जाते हैं और वहाँ पर नहर फ़रात के किनारे पर पहुँचते हैं। हुर जो है वहाँ भी पहुँच जाते हैं और उनके साथ जो है फिर मुकालमा होता है और इमाम हुसैन वहाँ पर जो है क़याम पज़ीर हो जाते हैं। अमर बिन साद अपने लश्कर के साथ आता है, अमर बिन साद भी लश्कर के साथ आ जाता है। इमाम हुसैन से मुकालमा हुआ। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि देखो, हमको कूफा वालों ने बुलाया था, इस वजह से हम आए हैं, इसलिए आपको चाहिए कि आप हमारे रास्ते से हट जाएं या मुझे जाने दें, जहाँ से आया हूँ वहाँ जाने दें, या तो मैं बिलादे
जहान में से कहीं किसी तरफ भी रुख कर लूँ, मैं वहाँ चला जाऊँ। और अगर नहीं मानते तो आपको मैं ये भी कहता हूँ कि मैं ख़ुद डायरेक्ट जा कर के यजीद से बात करता हूँ, चलो मैं दिमश्क चलता हूँ, मैं उससे समझ लूँगा जो कुछ समझना होगा। अब उमर ने कहा ये तो ठीक है। फिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास ख़त लिखा कि हुसैन वापस जाने के लिए भी तैयार हैं, दुनिया में किसी और तरफ जाने के लिए तैयार हैं, और यजीद के पास भी जाने के लिए तैयार हैं। इमाम हुसैन ने तो बात करने के लिए कहा था, यजीद ने अपनी तरफ से शायद उन्होंने मिला दिया कि और यजीद की बैत के लिए भी तैयार हैं। हालांकि ये बात झूठ है, चूँकि हज़रत हुसैन अपने मौक़िफ़ पर हमेशा कायम रहे और वो यजीद की बैत के लिए तैयार नहीं हुए, इसीलिए वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास भी जाने के लिए तैयार। इस्लाम का हाथ है, हमारा हाथ तक़द्दुस का हाथ है, हमारा हाथ जो है दीन की अमानत का हाथ है। ये हाथ यजीद जैसे फासिक और फाजिर के हाथ पर बैत नहीं कर सकता, हम उसे नहीं मान सकते। हम हुदूदुल्लाह को तोड़ने वाले को अपना कायद नहीं मान सकते, हम शरीयत का मजाक उड़ाने वाले को अपना रहनुमा नहीं तस्लीम कर सकते। ये हज़रत हुसैन का मौक़िफ़ था। और यजीद का मौक़िफ़ ये था कि ज़बरदस्ती हुसैन को जो है अपनी बैत ले करके जो है अपनी शरीयत को जो है अपनी जो उसकी अपनी हुकूमत को जो है वो शरीयत से आज़ाद करके और हर तरह के लहो लाभ को वो रवाज दे, और दुनिया देखे कि जब हुसैन नबी के घर वाले ने बैत कर ली है तो फिर शरीयत का जो रूप हो जाता और जो शरीयत का अंदाज़ हो जाता और जो दीन की शक्ल हो जाती, वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि उसका क्या आलम होता। इमाम हुसैन अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे, लेकिन जब अमर बिन साद का जो ख़त उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुँचा तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद थोड़ा सा तो माइल हुआ, लेकिन वहाँ पर शिम्र ज़िलजौशन जैसा खबीस मौजूद था। उसने कहा कि आप ये कहाँ के चक्कर में पड़े हुए हैं, आपको चाहिए कि फ़ौरन हुसैन को क़ैद करके उनको कत्ल करके उनका काम तमाम करिए, वरना अगर एक बार हुसैन आपके हाथ से निकल गए फिर आप दोबारा काबू नहीं पाएंगे। अमर बिन साद को शिम्र की ये बात जो है सही लगी। शिम्र को एक रुका दे करके अमर बिन साद के पास भेजा कि मैंने तुमको हीला और बहाने के लिए और हुसैन को मोहलत देने के लिए नहीं रवाना किया है, बल्कि तुम अगर हुसैन को कत्ल नहीं कर सकते और उनसे अगर यजीद की बैत करें तो करें, नहीं तो उनको कत्ल कर दो और उनकी लाश पर घोड़े दौड़ा दो, और अगर ये नहीं कर सकते तो तुम माजूल हो और शिम्र ज़िलजौशन जो है वो फ़ौज की जो है बागडोर संभालेगा। चुनांचे जब शिम्र ज़िलजौशन वो ख़त लेकर के आया, मज़ीद लश्कर के साथ आया, तो अब जो है सारे लश्कर की तादाद जो है वो 22,000 लश्कर की हो गई थी। अब बताओ, एक तरफ इमाम हुसैन के साथी सिर्फ 72 थे जिनके आवान व अंसार और अहल खाना थे, मुख्तसर से बाहर के चंद बाहर के लोग थे, बाकी सब अहल खाना थे। और सारे लोग, कुछ लोग जो हज़रत इमाम हुसैन के साथ रास्ते के मुसाफिर हो गए थे साथ में, ये समझ करके कि वहाँ माल गनीमत मिलेगा, लेकिन जब ये ख़तरात देखे तो वो एक एक करके अलग हो गए। हज़रत इमाम हुसैन ने से अमर बिन साद ने इब्न ज़ियाद का ये हुक्म सुना दिया कि शिम्र ज़िलजौशन जो है ये ख़त लेकर के आया है, इस लिहाजा अब जंग करना ये हमारी मजबूरी है और हम आपके ख़िलाफ़ जंग करें, या तो आप यजीद की बैत कर लें। लेकिन हज़रत हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया, फिर कहा कि जंग के लिए तैयार हो जाइए। अमर बिन साद ने जंग की इब्तिदा करनी चाहिए, असर का वक्त है, 9 तारीख़ है, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने कहा ठीक है, अगर जंग करना है मगर हम यजीद की बैत नहीं कर सकते, मगर हमें आज रात की मोहलत दे दो। आज शब आशूर है, हम लोग रात भर इबादत करेंगे, मुनाजात करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करेंगे, रियाज़त और बंदगी करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन ने मोहलत मांगी, खैर मोहलत मिल गई। हज़रत इमाम हुसैन रात भर इबादत करते रहे और अपने साथियों से कहा कि ऐ साथियों, मैं तुम्हारे सामने ये बात पेश करता हूँ, जो जिधर से आया है, जिधर से जाना चाहे वो चला जाए, और हम शमा भी बुझा देते हैं ताकि हम देखेंगे भी नहीं कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। तुम हमारा साथ छोड़ करके जा सकते हो, हमें ज़रा भी मलाल नहीं होगा, हमें ज़रा भी हमारे दिल में कोई ऐसी चीज़ पैदा नहीं होगी, तुम जाना चाहो तो चले जाओ। लेकिन हुसैन आज़म के 72 जानिसारों ने कहा नहीं, हम अपनी जान का नजराना आपके कदमों में पेश कर देंगे, हम आप पर मर मिटेंगे, हम आपके लिए कुर्बान हो जाएंगे। हम ये दुनिया को नहीं बताना चाहते कि हमने दुनिया के लिए इमाम हुसैन निवास रसूल का हमने साथ छोड़ दिया है।
हमने रसूल पाक का दामन छोड़ दिया है, हमने आले रसूल का साथ छोड़ दिया है। हम इतने शकी और जालिम नहीं हैं, हम आपके कदमों से दूर नहीं होंगे। हम अपनी जान का नजराना पेश कर देंगे, हम जाने वाले नहीं हैं। हम ऐसे परवाने नहीं हैं जो शमा के बुझ जाने के बाद वो फ़ौरन दूर हो जाते हैं। हम आप पर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देंगे, अपनी हयात कुर्बान कर देंगे। इमाम हुसैन ने सबका शुक्रिया अदा किया, सब इबादत में मशगूल हो गए। हज़रत इमाम हुसैन दास्तान बड़ी लंबी है और कोई दास्तान बयान करने का जो है वो एक माहौल जो होता है, आजकल के हालात आप देख रहे हैं। बस ज़िक्र हुसैन सुन लीजिए। हज़रत इमाम हुसैन ने जो है वो इबादत करते रहे, रियाज़त करते रहे, बंदगी करते रहे, मुजाहिदात करते रहे, तहज्जुद गुजारते रहे। इमाम हुसैन की ज़रा सी आँख लगी तो देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ ले कर के आए हैं और हज़रत इमाम हुसैन के सीने पर हाथ रख कर के मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्र व अजरा, ऐ अल्लाह हुसैन को सब्र अता फरमा और अजर अता फरमा। ऐ दे आशूर है, ऐ चरख़ कोहन आज की रात सुबह कर देंगे मुसल्ले पे हुजूर आज की रात। हुसैन रात भर बीवियों को सब्र की तलक़ीन करते रहे, अपने खेमे में सब्र की तलक़ीन करते रहे, उनके साथ ही इबादत और रियाज़त करते रहे। सुबह फजर हुई, सब ने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जंग शुरू होती है। नमाज़ पढ़ने के बाद जंग शुरू होती है। हज़रत इमाम हुसैन इत्माम हुज्जत के लिए एक बार फिर खड़े हुए। ऐ लोगों, तुम मेरा हक़ पहचानो, मुझे समझो और मुझे जानो। मैं कोई मामूली हस्ती नहीं हूँ जिसके खून से तुम अपने हाथ को रंगना चाहते हो। मैं अली का बेटा हूँ, मैं फ़ातिमा ज़हरा के नूर नज़र हूँ। मेरे पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने कंधे पर सवार किया है, उनकी पुश्त पर मैं खेला हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक को मैंने चूसा है। रसूल पाक हमसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। हमारी निस्बत को पहचानो कि सरकार ने हमसे कितनी मोहब्बत की है। हमारे मर्तबे को पहचानो कि फ़ातिमा ज़हरा मेरी कौन है। फ़ातिमा ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीन मेरी माँ हैं। सैयदुल औलिया इमामुल औलिया हज़रत अली मुर्तज़ा मेरे वालिद हैं। मेरे हाथ में ज़ुल्फ़िकार हैदरी है, मेरे ऊपर फ़ातिमा की तत्हीर का साया है। मैं किस घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा हक़ पहचानो। अम्र बिन साद ने कहा, ये तकरीर मत करो और मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। चुनांचे मुकाबला शुरू हो जाता है। हज़रत हुसैन के ये सब्र आज़मा अंदाज़ और सब्र व रज़ा के पैकरी का अंदाज़ हुर देख रहे थे। वो फ़ौरन जो है उन्होंने कहा, क्या वाकई तुम लोग हज़रत हुसैन को शहीद करने वाले हो? मैं अपनी आक़िबत और आखिरत को ख़राब नहीं कर सकता। फ़ौरन हज़रत इमाम हुसैन के कदमों में आए, कहा, हुजूर माफ़ करिएगा, मैंने आपको पाबंद किया, मैंने शुरुआत में आपको तकलीफ़ दी, मैंने आप पर सख्ती की। क्या अब मेरे लिए कोई नजात का ज़रिया है? क्या मैं आपके कदमों में आ कर के अब मैं अपने गुनाहों से नजात पा सकता हूँ? अपनी गुस्ताखियों और कमियों से मैं दूर हो सकता हूँ? हज़रत इमाम हुसैन ने कहा, बिल्कुल तुम्हारी तौबा कबूल की जाएगी, अल्लाह तुमको माफ़ करे। अंत हुर्रुन फी दुनिया वल आखिरा, तुम दुनिया में भी आज़ाद हो और तुम आखिरत में जहन्नम के आग से भी आज़ाद हो। हज़रत हुर जो है हज़रत इमाम हुसैन के कदमों में आ जाते हैं। एक एक करके अंसार हुसैन, आवान हुसैन, वो हज़रत हुसैन पर अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। हज़रत हुर भी मैदान में आए और बड़ी बेजिगरी से लड़ने के बाद हज़रत हुसैन के कदमों पे कुर्बान हुए। ज़ुहैर बिन क़ून कुर्बान हुए, मुस्लिम बिन औसजा कुर्बान हुए, हबीब इब्न मुज़ाहिर कुर्बान हुए। सारे लोग एक एक करके कुर्बान होते हैं। हज़रत क़ासिम बिन हसन जो है वो मैदान में आते हैं। हज़रत हुसैन से इजाज़त लेकर के बड़ी मुश्किल से हज़रत हुसैन उनको इजाज़त देते हैं। हज़रत क़ासिम बिन हसन मुकाबले पर आते हैं और अरज़क पहलवान और उसके 4 बेटों को तहत करते हैं। दाद शुजाअत दे करके अपनी जान हुसैन के कदमों पे कुर्बान करके चले आते हैं। अली अकबर शहज़ादे हुसैन जो हैं, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्स थे और अक्स नबी अतहर थे और मुशाबे रसूल थे, आप अपनी कड़ियल जवानी को बारगाहे इमाम हुसैन से इजाज़त लेकर के आप भी अल्लाह की राह में निकल पड़ते हैं और फ़ातिमा ज़हरा के गुलशन का ये फूल बड़ी बेजिगरी और मोहब्बत और दिलेरी के साथ अपनी जान को
कुर्बान करके इमाम हुसैन के कदमों पर अपनी आँखों को बंद कर देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। औनो मोहम्मद ज़ैनब जो हैं हज़रत हुसैन की हमशीरा बड़ी मिन्नत व समाजत करके अपने 2 नन्हे शहज़ादों जो साथ में काफ़िले के थे उनको लेकर के आईं और उन्होंने कहा हुजूर इजाज़त दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा ज़ैनब ये तुम्हारे फूलों को मैं कैसे इजाज़त देता हूँ, इनकी क्या उम्र है। लेकिन हज़रत ज़ैनब बज़िद हुई, हज़रत हुसैन ने इजाज़त दी। औनो मोहम्मद भी अपनी नौनिहालाना मोहब्बत को पेश करके हुसैन के कुर्बान हो जाते हैं। सुकैना प्यास की शिद्दत से तड़प रही हैं। अब्बास अलंबरदार मैदान कारज़ार में जा रहे हैं। सकीना की प्यास की तड़प देख करके हज़रत अब्बास अलंबरदार वो लौट आए और फ़ौरन फ़रात की तरफ दौड़े हुए गए। फ़रात से पानी भरा लेकर के निकले। मशकीज़े में तीर मारा गया, मशकीज़े के पार हो गया, सीने में जा लगा। एक ने ऐसी तलवार मारी आपका दाहिना बाजू कट गया। आपने बाएं बाजू से मशकीज़े को पकड़ा, आगे जा कर के आपके बाएं बाजू को भी काट लिया गया और तीरों के तीर बरसने लगे। मशकीज़ा छलक छलक कर वहीं पर गिर गया और हज़रत अब्बास अपने बाजू और अपनी जान का नजराना पेश करके इमाम हुसैन पर कुर्बान हो जाते हैं। इस तरीके से एक एक करके अहले बैत के अफराद भी अपनी जान का नजराना पेश करके कुर्बान हो जाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन तन्हा हैं, दिन भर जो है लाशों को ढो करके उनकी कमर दोहरी हो गई है, थके हुए बाजू हैं। हज़रत हुसैन अब भी इस बात पर अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं कि हम यजीद के हाथ पर बैत नहीं करेंगे। अब हज़रत अली असगर प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं। हज़रत अली असगर को इमाम हुसैन खेमे के बाहर लाते हैं। हुरमुला ने तीर मारा और हज़रत अली असगर के हुलकूम में पेवस्त हो गया। हज़रत इमाम हुसैन ने उनके हुलकूम से तीर मुबारक को निकाल करके बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, अल्लाह इसका भी नजराना कबूल फरमा। हज़रत अली असगर खेमे में लेकर के उनको जब वापस जाया जाता है तो बीवियों की चीखें निकल गईं। इस नन्हे अली असगर ने क्या बिगाड़ा था, इसकी प्यास को क्या हुआ था, इसको क्यों पानी नहीं दिया गया। पानी की बजाय इसकी प्यास चलते हुए तीरों से बुझाई गई। हज़रत अली असगर की कुर्बानी के बाद हज़रत सज्जाद, हज़रत आबिद बीमार जो हैं वो बुखार की शिद्दत से तड़प रहे हैं और उन्होंने सोचा कि लाओ मैं कुर्बानी पेश करूं और मैं उठूं, लेकिन नकाहत की वजह से गिर पड़ते हैं। हज़रत हुसैन ने कहा, ए सज्जाद, ए आबिद बीमार, आप जो हैं आप आराम करें, इसलिए कि आप ही से हमारी नस्ल को चलना है। हज़रत इमाम हुसैन सबको सब्र की तलक़ीन देते हैं। तलक़ीन करने के बाद हुसैन दिन भर के थके हुए, गमों से निढाल, गमों से चकनाचूर, हज़रत अली अकबर की शहादत का भी गम, कासिम की शहादत का भी गम और मोहम्मद की कुर्बानी का गम और खेमे के तसव्वुरात। अब इस मैदान कारज़ार में हुसैन तन्हा हैं। हज़रत इमाम हुसैन अपने फटके को पहन करके अपने वो जुल्फ़िकार हैदरी को लेकर के वो जुल्फ़ का साया वो उस तलवार का साया लेकर के ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ा इल्ला जुल्फ़िकार का जलवा लेकर के मैदान कारज़ार में हज़रत इमाम हुसैन निकल पड़ते हैं। और हज़रत इमाम हुसैन जो है मुकाबले पर आते हैं और हर तरफ से लोगों ने घेर लिया, अशकिया ने घेर लिया, ज़ालिमों ने घेर लिया, मगर हुसैन जो हैं वो अली के शहज़ादे थे, फ़ातिमा के बेटे थे, रसूल के निवासे थे। इतनी आसानी से इन ज़ालिम भेड़ियों के काबू में नहीं। हुसैन प्यासा था तो ये हाल है, हुसैन भूखा था तो यह हाल है, हुसैन गमज़दा था तो ये हाल है। हज़रत हुसैन ने दादे शुजाअत देते हुए जिधर झपट पड़ते हुसैन उधर कुश्ते के पुश्ते लगा देते। हर तरफ जो है भगदड़ मच जाती और ज़्यादी भेड़िए जो है वो कट कट के गिरने लगते। इमाम हुसैन लड़ रहे हैं, अली उनकी लड़ाई देख कर के लग रहा है वाकई वो अली के शहज़ादे हैं। इस 55 और 56 साल के हुसैन अपनी दादे शुजाअत दे रहे हैं और नहायत पामर्दी से और जमा मर्दी से मुकाबला कर रहे हैं। हर तरफ जो है अपनी शुजाअत की दाद देते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कब तक। हर तरफ से तीर बरस रहे हैं, अनियों के ज़ख़म लग रहे हैं, नेज़े को ज़ख़म लग रहे हैं। इमाम हुसैन का सीना जो है वो ज़ख़मों से चूर है। 72 ज़ख़म से हुसैन निढाल होकर करते हैं। इमाम हुसैन पर झपट पड़े सनान इब्ने अनस, शिमर बिन जिलजौशन और तमाम अशकिया इमाम हुसैन पर झपट पड़े और इमाम हुसैन के
बदन पर अपने पैर को रख करके खड़े हुए। इमाम हुसैन की तौहीन, जिस ज़ात को रसूल पाक ने अपने कंधे पे सवार किया, अपनी पुश्त पे सवार किया, अपने लुआब दहन से सरफराज फरमाया, और जिनको मुतअद्दिद बार उनको सूंघा करते थे, उन्हें चूसा करते, सजदे में चले जाते हैं। सनान इब्न अनस, खोली ने जो है आपके सरे तन को एक ऐसे खंजर से ज़बह कर दिया। इमाम हुसैन का सर तन से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद इब्न ज़ियाद के हुक्म के मुताबिक हज़रत इमाम हुसैन के बदन अतहर को, जिसमें अतहर से को घोड़े से रौंदा गया, घोड़े से पामाल किया गया और उसको बग़ैर कफन दफन के छोड़ दिया गया। उसके बाद ज़ियादी भेड़िए चले गए। अहले बैत का काफ़िला गिरिया गुज़ारी कर रहा है, लुटा हुआ काफ़िला। खेमे को भी बाद में जला दिया गया। बेसर व सामानी के आलम में हज़रत हुसैन के घर वाले पड़े हुए हैं। आज की रात ऐसी रात है, ये काफ़िला आया था। आज इस काफ़िले के सारे अफराद, अज़वाज तहरात और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को छोड़ करके सारे लोगों ने जाम शहादत नोश कर लिया है। इमाम हुसैन के सर अक़दस को नेज़े पर रख करके उसे उठाया गया, उसे घुमाया गया, उसे दिखाया गया, इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचाया गया। इब्न ज़ियाद मलून ने आपके दंदान मुबारक पर छड़ी मारनी शुरू कर दी। यानी सर हुसैन को तन से जुदा करने के बाद भी इनका नारवा सलूक जारी रहा। हज़रत ज़ैद बिन अरकम साहबी रसूल इत्तेफाक से दरबार